اب جو 18th امینڈمنٹ آئی ہے اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ایکسٹینشن جب دیں تو ہم اسمبلی میں لے جائیں اور اسمبلی میں بھی 2 مہینے کے اندر لے جائیں, ادھر سے تصدیق کرا لیں, پھر ایکسٹینشن. پاکستان رینجرز کوئی پولیٹیکل فورس نہیں ہے, مگر مخصوص مقاصد کی خاطر اسے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, نشانہ بنایا جا رہا ہے, متنازع بنایا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. رینجرز کراچی میں گئی, رینجرز نے بہت سی کارروائیاں کی, بہت سے لوگ پکڑے گئے. اس کے بعد سے رینجرز کا کردار, رینجرز کے آئینی کردار, ان کے پاس اختیارات کیا ہیں, اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. آج ان کی جو میں جو ان کو ریکوزیشن کیا گیا تھا ان کو کراچی میں, آج وہ ختم ہو رہی ہے. اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا یا نہیں. چودھری نثار علی خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنی پریس کانفرنس میں یہ تو کہا کہ امید ہے, وہ مطمئن ہے آج اپنی سی ایم سندھ قائم علی شاہ کے ساتھ بات چیت کے بعد جو ان کی فون پر بات ہوئی کہ ان کو مزید توسیع مل جائے گی. لیکن ساتھ ہی چودھری نثار نے بہت سی ایسی باتیں کی جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید ان کا یہ خیال ہے کہ رینجرز پر بہت سی تنقید سیاسی وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہے. انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ جب لوگ پکڑے جا رہے ہیں اب اور سیاسی جماعتوں کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, اس بات پر زیادہ تنقید ہو رہی ہے. ذرا تھوڑی دیر ایک نظر ڈالتے ہیں بیانات پر جو بیانات دیے گئے. کراچی کے حالات, 7 سے 9 ہزار کے قریب لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مر چکے, بھتے کی بہت زیادہ رپورٹس تھیں, اغوا برائے تابان, دہشت گردی کے واقعات. تو اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے فوج کو جو دعوتیں دی, کیا کہا الطاف حسین صاحب نے, پہلے یہ سن لیتے. ملک کی دولت لوٹنے والوں سے نجات اٹھانے کے لیے ماشاءاللہ کی فرض پر فوج کے جرنیل اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو بڑی برائی کو روکنے کے لیے چھوٹی برائی ہمیں قبول ہے. میں ان سے کہتا ہوں ماشاءاللہ کی طرح وطن جرنیل اگر کوئی ایکشن اٹھاتے ہیں یہ تھے الطاف حسین صاحب جنہوں نے بار بار, ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز انہوں نے فوج کو دعوت دی مارشل لا کی طرز پر. بلکہ این کے ایم کا یہ ماننا ہے کہ کراچی میں جو یہ رینجرز کا آپریشن ہے یہ ہماری درخواست پر کیا گیا ہے. سو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ اس فوجی آپریشن کا. اب یہ آپریشن جب شروع ہوا تو شروع میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف زیادہ کارروائیاں, ان کے خیال میں زیادہ کارروائیاں فوجی جو رینجرز کر رہی تھی ان کے خلاف کر رہی تھی. تو متحدہ نے اس کی مخالفت شروع کر دی. بہت سے بیانات آئے اس کی مخالفت میں, جس میں الطاف حسین صاحب نے بھی بہت سی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ رینجرز ایک کراچی کو مقبوضہ علاقہ بنا دیا گیا ہے, اس طرح کی باتیں کی. ہمارے پاس کے ساؤنڈز موجود ہیں جی, چلائیے گا ذرا الطاف حسین صاحب کے ساتھ. بلال صاحب آپ کی بھی اولاد ہے, مجھے نہیں پتا آپ شادی شدہ ہے نہیں ہے, لیکن آپ کے بہن بھائی تو ہوں گے. خدا کے غضب سے ڈریے, اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے, خدا کیوں دیر ہے, اندھیر نہیں. اتنا ظلم برداشت کرو, اتنا ظلم کرو جتنا کہ تم کل برداشت کر سکو. آپ ہمیں تسلیم نہیں کرو گے تو سارے غریب مل کر اور مہاجر آپس میں مل کر پھر ایک ملک آزاد کرانے کی جنگ کریں گے. میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, نوجوانوں, آج سے 1 گھنٹہ فوجی ٹریننگ پر لگاؤ, پاکٹ منی سے اپنے پیسے بچاؤ, کمانڈو ٹریننگ حاصل کرو, لیفٹ
लंदन में जाके गन चलाना सीखो, आज से अपनी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दो। अल्लाह ताला राहील शरीफ को राहील भी बना दे, शरीफ भी बना दे, ऐसा कि जो मुल्क में ज़र्बे हज़्बी नहीं, ये रोज अल्ताफ भाई कुर्रा का एजेंट बना देते हैं। ये फिर मुखालफत आई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुखालफत कर रही थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इसकी हिमायत में बड़े बयान दिए। ना सुनिए पीपल्स पार्टी इस दौरान रेंजर्स और कराची ऑपरेशन के बारे में टीवी प्रोग्राम्स में क्या कह रहे हैं। रेंजर्स की जो कार्रवाई कराची में है, आमतौर पे वो ठीक है, और कराची में जो अगर आप डेटा उठा के देखें तो जराइम में कमी आई है। आपके ख्याल में ठीक ऑपरेशन चल रहा है? अक्रॉस बोर्ड हमने जब हुआ था यकीनी तौर पर इसी रिजॉल्व और इसी कमिटमेंट के साथ ये तमाम कार्रवाई चल रही है। मैं फिर कह रही हूं कि जब कराची जैसे शहर में ऐसी कार्रवाई होती है तो हर जगह ये अमल हो सकता है, कोई ऐसी जगह आप बचा नहीं सकते हैं। उसमें यकीनन पीपल्स पार्टी के कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, हमारे लोग रोज उस पर सवाल करते हैं। बिल्कुल एक के दोस्त आए थे, आज भी रिकॉर्ड पे है, मैंने कहा था कि आप सबसे ज्यादा आप चिल्ला चिल्ला कर ऑपरेशन कर रहे हो, लेकिन ऑपरेशन आएगा तो सबसे ज्यादा फिर चीखें भी आपकी सुनने में आएंगी, हमारी भी होंगी, हमारे कारकुन भी चीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी आवाजें आएंगी। आज वही हो रहा है। आज पूरा मामला मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस ऑपरेशन को पाकिस्तान की और सिंध में जितनी भी मुतहरिक सियासी जमायतें हैं उनकी पुष्पनाई हासिल है, वो सपोर्ट करते हैं इस ऑपरेशन को। जनाब ये आपने सुना, इस ऑपरेशन को सिंध की तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है और वो सपोर्ट करते हैं इस ऑपरेशन को। ये थी पीपल्स पार्टी जब तक 90 पर ऑपरेशन हो रहे थे, जब तक एमक्यूएम के लोग पकड़े जा रहे थे, कहा जा रहा था टारगेट किलर्स हैं, जीआईटीज हो रही। अब सडनली जब कुछ इस तरह की कार्रवाइयां हुई जिसमें पीपल्स पार्टी का नाम आया, फ्रंटमैन पकड़े गए, कुछ खबरें ये थी कि पैसे रिकवर हुए, कोई लॉन्चों की भी खबरें आनी शुरू हो गई। जब ये खबरें आनी शुरू हुई तो फिर पीपल्स पार्टी ने क्या किया, आइए वो भी सुन। ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपके 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हम में रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूशन हमारे कमजोर हों। इसलिए ये आसिफ जरदारी साहब से बड़ी लंबी उन्होंने तकरीर की जो बड़ी मुतनाज़ा बनी। आपको ये भी बता दें कि कराची ऑपरेशन, ये कायम अली शाह साहब ने कहा जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ है, किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं। ये बात उन्होंने 26 मार्च को कही। 13 फरवरी को उन्होंने कहा आखिरी मुजरिम के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा, किसी दबाव में आए बगैर मंतकी अंजाम तक इस ऑपरेशन को पहुंचाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिंध हुकूमत पाकिस्तान फौज के शाना बशाना काम करी। तो ये है एक ब्रेक डाउन छोटा सा, किस तरह दावत दी गई, कहा गया कि ऑपरेशन किया जाए, कहा गया रेंजर्स भी ऑपरेशन करें, लेकिन जब जब ऑपरेशन जिस सियासी जमात की तरफ गया तो उस सियासी जमात ने तनकीद शुरू कर दी। हमारे साथ यहाँ लाशमी साहब मौजूद है, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया आपका। अली रजा आब्दी साहब मेंबर कौमी असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। आब्दी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, रास्ते में कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बात करेंगे इमरान इस्माइल साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। पीटीआई ने आज रेजोल्यूशन भी दिया है सिंध असेंबली में कि रेंजर्स को काम करने दिया जाए और अब इख्तियार रहने दिया जाए। आब्दी साहब अगर इजाजत दें, एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब ने बहुत सख्त बयान दिए, कल खुसूसी तौर पर उन्होंने धरने की भी बात की है। साथ ये कराची का ऑपरेशन, फौज आ जाए कोई बात नहीं, कुर्बानी देंगे वगैरह वगैरह, ये हुआ क्या है यकायक कि वो दो सियासी जमातें हैं जिनकी दौरे हुकूमत, जिनकी हुकूमतों में हालात खराब रहे हैं कराची के, और सडनली आके आप ही दोनों अब मुखालफत शुरू कर दी आप लोगों ने इस ऑपरेशन की। क्या उसकी वजह वही है जो चौधरी निसार अली खान साहब कह रहे हैं कि जब आप पर हाथ पड़ा, आपके लोग पकड़े जा रहे हैं तो आप लोग ये काम कर रहे हैं, आप तब शोर मचा रहे हैं, इस वजह से शोर मचा। बहुत शुक्रिया काशिफ। मेरे ख्याल में आप अगर वो ख्वाजा आसिफ साहब की जो पार्लियामेंट की स्पीच थी वो भी चला देते साथ में, तो शायद तीनों बड़ी पार्टीज का
मौक़िफ़ और चीज़ सामने आ जाती। मैं आपको इसको कॉन्टेक्स्ट इसका बताता हूँ कि जब तालिबानाइजेशन पाकिस्तान में बिल्कुल उरूज पर थी और पूरे पाकिस्तान में अटैक्स हो रहे थे हमारी लेवीज पे, फौज पे, एफसी पे और प्लस सिविलियंस पे, तकरीबन 60,000 शोहदा हैं हमारे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई ने बड़े वाज़े तौर पे 2007 से बाकायदगी से कहते रहे कि पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन हो रही है। इसको सर आज मसला तालिबानाइजेशन का नहीं, आप साहब माफी चाहता हूँ, अगर आप उसको तालिबानाइजेशन की तरफ ले जाना चाहेंगे, वो तालिबानाइजेशन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दूं, आपकी अपनी बात, मैं अगर कॉन्टेक्स्ट समझा दूं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कॉन्टेक्स्ट समझा कि यही चीज, जी मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, यही चीज कराची में, क्योंकि जब क्या हुआ, जब सवात में ऑपरेशन हुआ 2009 में, ऑपरेशन राय रास्त हुआ, राय निजात हुआ, तो पंजाब ने तो खैर अपना रास्ता बंद कर दिया, वहां किसी को नहीं आने दिया। केपी में कुछ लोग चले गए, फिर ज्यादातर बलोचिस्तान कराची की तरफ आ गए और कराची में आके यहाँ पे बहुत सारे स्लीपर सेल से इनकी एक्टिविटीज इंक्रीज करती गई और कराची में भत्ताखोरी हो गई, टारगेट किलिंग हो गई, ये उरूज पर आ गई थी, जिस पे कायदे तहरीक ने फिर एक आवाज उठाई और कहा कि पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि वो टेक ओवर करे और वो इस मसले से हमें निजात दिलाए कराची को। तो क्या हुआ, फिर पाकिस्तान आर्मी तो ज़ाहिर नहीं आई, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स जो कि पाकिस्तान में, जो कि सिंध में 1988 से थी, उसको नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा बाकी पार्टीज के साथ मिलके एक कंसेंट डेवलप किया और कहा कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी जिसके बेस पे जो ऑपरेशन किया जाएगा कराची में वो मॉनिटर भी होगा, वो देखा भी जाएगा और पैरा फोर्स जो है, हमारी रेंजर्स जो है, इनको एडिशनल राइट्स देके इनसे कार्रवाई कराई जाएगी। अब जब ये शुरू हुआ तो 2013 सितंबर से लगातार हमारे, मैं बता दूं कि उस जमाने से लेके आज तक तकरीबन 250 से ज्यादा कारकुनान हैं जो कि शहीद हो चुके हैं, 2013 की मैं बात कर रहा हूं, उससे अभी तक, और 42 कारकुनानों को उठा के छुपा के एक्स्ट्रा जुडिशली किलिंग की गई है और तकरीबन 35 से 40 कारकुनान अभी भी हैं जो कि मिसिंग हैं, जिनका कुछ पता नहीं है। तो ये जब इस तरह की एक्टिविटी एक फोर्स की तरफ से आती है, फिर उसके बाद ये दिखाया जाता है कि यही गलत है या यही एक पार्टी है जिसके पास बुरे लोग हैं या यही एक पार्टी है जो कि टारगेट किलिंग या बत्ताखोरी, ये बात फिर मुझे उससे आवाम में रिजेंटमेंट आती है। स्टेटमेंट आना पड़ेगा, उन्होंने आपसे ये कहा था कि एमकेएम के दोस्त आप सबसे ज्यादा चीखेंगे, वो आज बात उसी तरफ चली गई है कि सबसे ज्यादा चीखें मुतहदा की शुरू हुई। देखें, अगर हम पीपल्स पार्टी के पीछे आए तो पीपल्स पार्टी के हमारे पे काशिफ जब हम पे कुछ साबित हो रहा होता तो फिर जरूर हम वो समझ में आता है कुछ आरटीओ साहब की बात का, लेकिन जब साबित नहीं हो रहा, लोगों को उठाया जा रहा है, उनको उठा के बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है, 90 दिन के लिए रखा जा रहा है और जब लेके जाते हैं जी इसने ये किया वो। आबिद साहब को जेआईटी पढ़ी आपने? रिजवान कुरैशी की एक जेआईटी आई थी, आप काशिफ जेआईटीज अगर आपने पढ़नी शुरू कर दे तो फिर आप हमूदुर रहमान कमीशन से आ जाइए। मसला ये कि वो तो अनटचेबल है पाकिस्तान के। प्रॉब्लम ये कि अगर आपने मसला हल करना, अब आप आगे जब जेआईटी पे आते हैं काशिफ भाई, तो फिर जेआईटीज तो कोर्ट में जाने दीजिए, उनको वहां पे जाने देना, टाइम तो दें, आप तो टाइम ही देने को तैयार नहीं ना। हमने तो नहीं रोका और रेंजर्स तो नहीं लेके जाएगी ना, ये तो प्रोसिक्यूशन लेके जाएगी, गवर्नमेंट लेके जाएगी और रेंजर्स आगे वही प्रोसिक्यूशन है। वली खान बाबर का केस की प्रोसिक्यूशन याद है आपको? सारे गवर देते हैं, सारे वकील मार देते हैं, सब कराची है ना, थोड़ा तो समझे इसको। कराची के हालात भी उसके ऊपर भी देखे, वली खान बाबर का भी जो केस है उस पे भी जो प्रोसिक्यूशन हुई है, वो प्रोसिक्यूशन के तहत वो जो लोग पकड़े गए और कुछ लोग निकले गए, तो वो भी कोर्ट में ही जाके फैसला होगा ना। इसका नवाज शरीफ साहब का तैयारा केस जो था वो भी कोर्ट में फैसला हुआ था। भुट्टो साहब की हैंगिंग का केस जो है वो भी टाइम तो दें। आप ये मैं और आप टीवी पे बैठ के तो नहीं कर सकते काशिफ। इमरान इस्माइल साहब चले, मैं इमरान इस्माइल साहब, हालात बेहतर कराची के रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद? बहुत बेहतर हुए हैं हालात कराची में। टारगेट किलिंग जो है वो खत्म होने के बराबर हो गई है। खत्म तो टोटल 100% तो वाइप अप नहीं हुई, लेकिन बहुत कम मिनिमल रह गई है कराची में। आपको इस वक्त यहाँ पे डकैतियों की तादाद जो है वो कम हो गई, किडनैपिंग जीरो पे आ गई है, जीरो किडनैपिंग हुई है पिछले पूरे महीने के अंदर, कोई किडनैपिंग नहीं हुई। मैं काशिफ एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि ये तो एमकेएम तो फौज को बुलाना चाह रहे थे, अगर फौज आ जाती और वो ऑपरेशन कर रही होती, फौज है ना सर, मेजर जनरल बिलाल के खिलाफ खड़े साहब जो डीजी रेंजर है, फौज ही है ना जी। ये सारी एक्चुअली पैरामिलिट्री पर है तो फौज डायरेक्ट आर्मी को बुलाना चाह रहे थे। ये तो जैली इदारा है ना आर्मी का, ये तो डायरेक्ट आर्मी को बुला रहे थे। और नंबर 2 ये कि ये जो इतना रोना जाते हैं ना कि जी हाय एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन हो गया, एमकेएम के लोगों को पकड़ लिया, एमकेएम के लोग मार दिए, ऐसा नहीं है।
अगर कोई मुझे फिगर ये दे सकते हैं कि कितने लोग पकड़े हुए हैं इस वक्त? उन्होंने फिगर दिया 42, कितने लोग हैं? 42 एक्स्ट्रा जो किलिंग, ये अभी आबदी साहब ने फिगर दिया है, 35 से 40 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में, अगर 42 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में एमक्यूएम के मरे 42, तो मरे तो टोटल 500 हैं, तो बाकी लोग किसके हैं? वो तो एमक्यूएम के नहीं है। इनका रोना गाना इतना ज्यादा क्यों, बाकी क्यों नहीं रो रहे, मुझे ये बताएं। अगर 10,000 बंदा कराची जेल में है, एक मिनट काशिफ, अगर 10,000 बंदा कराची जेल में है जो इल्जाम में पकड़ा गया टेररिज्म, तो इनके तो 100 ही हैं उसमें। नहीं 100 भी नहीं होना चाहिए ना। सवाल ये देखिए, मसला ये कि कहीं ना कहीं शोर मचाते हैं, मुझे ये समझ नहीं। कहीं ना कहीं ये करेक्शन करनी पड़ेगी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल तो लोग नहीं मारे जा सकते। देखिए ये तो रियासत है, एक आइन और कानून के तहत चलती है। अब ये नहीं कह सकते कोई बात नहीं, आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये काम ना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं पुलिस मुकाबले में या रेंजर से एनकाउंटर के अंदर ये मुत्तहिदा वालों को इंसान ही नहीं समझते इमरान इस्माइल साहब। नहीं मुत्तहिदा, आप दूसरों को भी इंसान समझें तब बात बनेगी ना। वो कहने आगे से यही कहेंगे आप मुत्तहिदा वालों को मसला ये है आपका प्रॉब्लम कि 7,000 लोग इसी कराची शहर में 5 साल में मर चुके हैं। मेरा ख्याल है नंबर तो जब मुत्तहिदा ने 7,000 लोग अगर यहाँ पे मारे गए थे तो मुत्तहिदा के और अगर मुत्तहिदा बड़े मजे से हुकूमत में बैठे थे, लेकिन एक ब्रेक के बाद मुझे कराची में कैसे हो गया? अगर मुत्तहिदा इन्वॉल्व नहीं थी तो मुत्तहिदा तो इन्वॉल्वमेंट है ना इसके अंदर, ये तो इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। ठीक, मुत्तहिदा की इन्वॉल्व के अंदर ये कह रहे हैं इमरान इस्माइल साहब। ब्रेक के बाद सर अब फिर बताएं, अब कराची में आज निसार साहब ने भी बात कही। सर ब्रेक के बाद मैं जरा मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नजर इसलिए आया कि निसार साहब की बात से लगता था कि अब क्योंकि उनकी दुम पे पांव आया है इसलिए इतना शोर पड़ रहा है। ये जो दो बड़ी सियासी जमातें कराची की, उन्होंने कहा कि एक मकसद के तहत रेंजर्स का इमेज तबाह करने की कोशिश हो रही है कराची में। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? एंड पीपल्स पार्टी, वो पार्टी, हमने अभी आपके आने से पहले आपका शॉट भी चलाया, जी पता है, आप इसकी हिमायत कर रहे थे, सईद गनी का भी चलाया, मौलाना बख्शालियों का भी चलाया, जी मुझे इल्म है। जी, तो वो जब आपकी तरफ नहीं आया था तब तो आप बहुत खुश थे। अब आपकी बारी आई है, मौका दीजिएगा, मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप। वेलकम बैक नाज़रीन। हाशिम साहब से पहले हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत बैठी है, सोच रही है। क्यों सोच रही है? निसार साहब ठीक कहते हैं, अपने पे हाथ पड़ा तो जरा थोड़ा सा परेशानी हो गई। तो आपने पहले से सोच लिया कि हम सोच रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा मुतमईन हूं कि शायद रात तक कुछ हो जाएगा, लेकिन राब्ते चल रहे हैं। वज़ीर आला ने बिलावल साहब से मुलाकात की, फिर आसिफ जरदारी साहब भी राब्ते में रहे कि क्या करना है, रेंजर्स को एक्सटेंशन देनी है या नहीं। ये तो हमारे बंदे पकड़ गए, ये तो फ्रंटमैन पकड़े जा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी। कोई है कि हमारे काशिफ भाई, आपने सारी बातें बयान कर दी कि कौन कौन लोग कब क्या कह रहे थे। एपीसी में आपने देखा होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थे, और फिर दो ही वजह से आप उस रेंजर्स के पावर को टर्मिनेट कर दें या उसे आप एक्सेस ना दें, या तो खत्म हो गया हो जराइम, या बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, यहाँ पे वो रिड्यूस, या वो बहुत इनफेक्टिव हो गया हो। ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है। जैसे इमरान ने कहा, टारगेट किलिंग कम हो गई है, एक्सटॉर्शन खत्म हो गया है, किडनैप रैंसम कम हो गया, स्ट्रीट क्राइम कम हो गया, इन सब चीजों के बावजूद। अच्छा, फिर जो लोग उन्होंने निशाने पे लिए, उनमें से पीपुल्स पार्टी के शायद चंद ही लोग होंगे। लियारी गैंग वॉर के बहुत बड़ी तादाद में मैसिव उनके लोगों को उन्होंने एलिमिनेट किया है। तालिबान के बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एलिमिनेट किया है। लैंड ग्रैबर्स को बड़ी तादाद में काम, बहुत इफेक्टिवली काम। तो फिर मसला क्या है? मसला ये हुआ कि शाज़िया इत्तेफाक नहीं करेंगी। जब तक 9-0 पे भी हुआ था, 9-0 की भी कोई मैसिव किलिंग नहीं हुई है। अगर आप बता दें 9-0 में कौन से पॉलिटिकल लोगों को पकड़ा गया है, कौन से एमपीए को पकड़ा गया है, किस सेनेटर को पकड़ा गया है, किस एमएलए को पकड़ा गया है, किस राब्ता कमेटी के कोई फाल रुकन को पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया। जो लोग एमक्यू, इनको को पकड़ा गया ना जी। देखिए, इनको वो हाइडिंग एक क्रिमिनल, इनको शुक्रगुजार होना चाहिए था रेंजर्स का कि जनाब रेंजर्स ने जो इनके अंदर गंद है उसको साफ कर दिया है। जिसको ये साफ नहीं कर पा रहे थे वो कर रहे थे। ठीक, अब जो सिंध गवर्नमेंट, वैसे काफी हद तक काफी इफेक्टिवनेस हो गई। अब जो सिंध, अच्छा अब आप देखिए बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कराची के ताजिर हैं, कराची के नौजवान हैं, कराची के आम लोग हैं, कराची के वो लोग। आपकी एनालिसिस ये है कि इफेक्टिवली काम, बहुत इफेक्टिवली हुआ है। अगर आपको ये कहा जाए कि आप बताइए जाना चाहिए
ऑब्वियसली नहीं जाना थी जब तक कि बिल को रिरोटेट नहीं किया, जब तक इसको फिनिश ना कर दिया जाए, खत्म ना करे, बिल्कुल ना खत्म। उसकी वजह देखिए, अब इनके साथ जो प्रॉब्लम है, सिंध गवर्नमेंट, कायम अली शाह साहब शरीफ आदमी है, ठीक अच्छे आदमी है और बहुत ईमानदार और नेक नाम आदमी भी है। उनकी बहुत सारी कमजोरियां कोताहियां होंगी अपनी जगह, बट जब मोहम्मद अली को पकड़ा गया, शेख को जब पकड़ा जाता है, मंजूर कादिर के पीछे लोग जाते हैं, जब निसार मुराई के पास जाते हैं, जब शाहिद राणा के पीछे जाते हैं, जब दीगर लोगों को ट्रैक उसके, हाँ वही निसार मुराई, और जब उनके दीगर डायरेक्टरों के पीछे जाते हैं, तो फिर और जब ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? अब यहाँ पे कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई है, यहाँ किसी के खबरें नहीं है कि घर से 2 अरब रुपए निकला है, वहां छापा पड़ गया, पता नहीं कौन कौन सी खबरें में 2 अरब रुपया निकला है। जब लॉन्चों की बात होती है, अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो मैसिव लेवल पे इनोसेंट स्टूडेंट्स, वर्कर्स, लेबर, दुकानदार मारे जाते, या ब्लडशेड होता, स्ट्रीट ब्लडशेड होता है, या फिर उनको उन्होंने टॉर्चर किया हुआ होता है। आप कराची के ताजिरों से पूछें, कराची के दुकानदारों से पूछें, आज रमजान का महीना, उनसे जाके पूछें कि पिछले सालों में क्या होता रहा, आज क्या होता रहा। अब अगर कराची जो बिजनेस हब है, कराची जो इंडस्ट्रियल सेंटर है, कराची जो कल्चरल हब है, अगर वहां पे आज फैमिलीज निकल के शॉपिंग कर रही हैं, अगर आज वहां पे लोग आराम से सड़कों पे घूम रहे हैं, यू वुड कैटेगराइज दिस एज अ, अच्छा फिर अब आगे वापस आता हूं। अभी केस तो सेटअप हो गया, केस सेटअप कर दिया इमरान इस्माइल साहब ने भी। देखो जो 2 पार्टियां बाहर हैं हुकूमत से, जिनके बंदे नहीं पकड़े जा रहे फिलहाल, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। जो जिनके बंदे पकड़े जा रहे थे, निसार साहब ठीक कहते हैं, इनके बंदे शोर उधर ही है जिधर मसाइल है। एक तो मैं छोटा सा इख्तिलाफ ये करूंगी कि शॉपिंग सेंटर्स और लोगों की सैरो तफरी जो है वो इतनी अभी जोशो खरोश से नहीं, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई है और कराची तो कल रात से अंधेरों में पड़ा हुआ है। आज की क्या सिचुएशन है, मैं सुबह तक तो वहाँ लाइट नहीं थी, तो ये बहुत, इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। एक काम करेंगे जी, लोगों से हमने नहीं किया, मैं अब लॉ एंड ऑर्डर पे आ रही हूँ ना, अब आप मुझे लॉ एंड ऑर्डर पे, मैं ओपिनियन के साथ ही हूँ। अगर आप साथ होंगे तो फिर पहले आप मुझे सुन ले। देखिए बात यह है कि जो हकीकत है, अगर वहां लोड शेडिंग की मसला है, तो ये भी आप ही के फोरम पे बात करूंगी। तो कोई ताल्लुक नहीं, अफरा तफरी या लोगों के अंदर बेचैनी का ये आलम वहां एक अलग नौयत का है। अच्छा, अब लॉ एंड ऑर्डर की बात देखिए, आइडियल सिचुएशन, काशिफ आप भी इत्तेफाक करेंगे और निहाल साहब भी एक जमहूरी कारकुन है, सियासी जमात से उनका ताल्लुक है। आइडियल सिचुएशन तो ये कि सिविल इदारों को लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या जो भी नॉट ओनली दे शुड बी इन चार्ज, दे आर इन चार्ज, बट दे शुड बी परफॉर्मिंग। वो नहीं कर रहे। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, फिर आप अपनी जजमेंट मुझे बता दीजिएगा। तो आइडियली तो ये सिचुएशन होनी चाहिए, मेरा ख्याल है हर जमहूरी मुआशरे का यही तकाजा है। अब जो सिचुएशन है, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी और ऑन बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई और कि ऑपरेशन कराची में एक होना चाहिए, जो पहले भी हो रहा है। आपने खुद कहा कि 91-92 से रेंजर्स जो है वो दो चीजें, एक तो रेंजर्स की एग्जिस्टेंस भी है और फिर उनको जो पावर्स दी गई है ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। एग्जिस्टेंस जो है वो आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है और जो एडिशनल पावर्स दी गई हैं, जबकि दी भी जा रही थी। तो अगर आप पीपुल्स पार्टी के, मेरा तो खासतौर पर निकाल के देख लें तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथियों के साथ बैठ के मैंने खुद कहा कि आप ये बात कर रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा पावर दी जाए, तो आप देख लें, क्योंकि पुलिस का काम उनका नहीं है FIR काटने। लेट मी फिनिश। प्रोग्राम का वक्त यू कैन नॉट हैव योर ओन माइंड व्हेन यू लिसनिंग टू मी, यू हैव टू लिसन टू माय माइंड। आई विल, लेकिन मेरा नुक्ता तो समझ लेना। एक तो मेरे पास 40 मिनट और माशाल्लाह इश्यू पे रहना, बैलेंस भी नहीं होता और आप मुझे बात, नहीं आप 2 लोग हैं, मैं इश्यू पे रहना है, मुझे ये जानना चाहता हूँ। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी, मैं किसी और के, मैं ये जानना चाहता हूँ रेंजर्स से आपको एतराज क्या है? मुझे रेंजर्स से कोई एतराज नहीं है, सीएम सिंध को रेंजर्स से कोई एतराज नहीं है। आप तासुर पैदा कर रहे हैं। मेरी बात सुन लेना, आप मेरी बात तो सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। हमें कोई एतराज नहीं है सीएम सिंध की। अगर आप कल स्टेटमेंट उठा के देख लें, आज मेरी नजर तो से एक्सप्रेस ट्रिब्यून गुजरा है, उसमें बाकायदा, और एक और मैं नाम नहीं लूंगी, एक और इदारे का टीवी चैनल के वेबसाइट के ऊपर भी उनका एक स्टेटमेंट आया। आप मेरी बात तो सुन लें कि कल की उनकी एक स्टेटमेंट है, अगर मुझे आप बयान कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। देखिए, उन्होंने कल भी कहा है कि रेंजर्स और पुलिस को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है उनके एफर्ट्स के लिए। सफूरा सानेहा हो, सखर का वाकया हो, हादसा हो या सभी महमूद की शहादत हो, इनके पीछे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। देखिए, मैं अपनी तारीफ की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन ये कार्रवाइयां जो हैं किसी और सूबे में अरेस्ट के हवाले से इस तरह की नहीं है कि पुलिस ने या रेंजर्स ने इस तरह एक्ट किया। लेकिन आप, क्योंकि मैं अपनी बात रखूंगी ना, अब मैं आ रही हूं ना, आप मुझे मौका दें, मैं भी तो केस बिल्डअप करूं। अब आप कह रहे हैं एक्सटेंशन
चीजों की एक्सटेंशन है। एक एक्सटेंशन है आर्टिकल 147 के अंदर, जो 91 से कराची के अंदर रेंजर्स मौजूद है, ठीक है, डिप्लॉयड है, किसी भी हुकूमत में आई, किसी भी हुकूमत में ऑपरेशन है, मैं उस बहस में नहीं जा रही, लेकिन है मौजूद, ठीक है ना, हम जानते हैं। मैं छोटी थी जब से मैं देख रही हूँ रेंजर्स है, मेरी बच्ची छोटी है वो भी देख रही है। खैर, अब ये 147 के अंदर है, ठीक है, 147 के अंदर एक एक साल की एक्सटेंशन मिलती है, ठीक है, वो एक्सटेंशन मिल जाती है, 5-6 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, दैट इज नेवर बीन एन इशू, लेकिन हो जाता है जुलाई 18 को वो एक्सपायर हो रहा है, ठीक। दूसरी जो आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी पता हो ना, क्योंकि किस चीज की एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन है पावर्स की, जो उनको पुलिस पावर्स दी है इस ऑपरेशन के दौरान, जो पिछले बरस दी गई है, जो कि 120 डेज के बाद एक्सपायर हो जाती है, ठीक है ना, ये बात है। अब ये दो इश्यूज हैं, ठीक है, ये मिक्स हो रहे हैं, एक इशू और ये दोनों इश्यूज जो है, जो तौसी का मामला है, तौसी विच इज एक्सटेंशन, ठीक है, वो सीएम सिंध के इख्तियारात है, जो 147 आर्टिकल के तहत इख्तियार है, जिसमें अब एक प्रोवाइजो है 18वीं तरमीम के बाद। सुबाह असेंबली का मुझे बात करने दीजिए, जब तक ये बात नहीं समझ आएगी सनसनी फैलती रहेगी और बात नहीं समझ आएगी। उसको असेंबली में ले जाने की बात हो रही है इस आइन के मुताबिक तौसीक के लिए, रैटिफिकेशन। लेकिन आप लोगों को एतराज नहीं है, आप लेकर जाएंगे तौसीक के लिए नहीं, ये लुगत देख लीजिए कि दो लफ्ज है, तौसीक के लिए, और तौसीक जो है वो सीएम साहब करेंगे। और ये तौसीक का जो मामला है, क्योंकि पहले आपको पता नहीं होता था, 4 माह खत्म हो जाते थे तो 4 दिन के बाद फिर एक्सटेंशन हो जाती। अब वो क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज डेडलाइन है, तो आज ये कल भी साइन हो सकता है, ये परसों भी साइन हो सकता है। सीएम साहब के बयान से मुझे तो कोई ऐसा तासुर नहीं मिल रहा कि सीएम साहब कहे कि मैं चौधरी निसार को क्यों परेशानी हो रही है, ये कह सकते हैं, चौधरी निसार साहब को क्यों परेशानी हो रही है। एक और बात, आप सिर्फ एक बात है, देखिए इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करने की बात है, जो काम आपको दो लाइन आपको शुरू में बोलने चाहिए। मैं क्योंकि सदर मुमलिकत है पाकिस्तान के, इनकी स्पीच का मैं हवाला दे देती हूँ, ये सदर साहब ने भी फरमाया है। देखिए कहते हैं यहाँ पर मैं रियासती इदारों से ये बात जरूर कहूंगा, उनकी कवानीन के तहत, और इन्होंने इतना केस किया है, पर अब आई है कि दायरा कार से आगे जा रहा है। मैं कंफ्यूजन फैलाने वाली जमात नहीं हूँ, मैं क्लियर बात करूंगी। आपने किडनैपिंग्स की कमी की बात की, किडनैपिंग्स की पूरे सिंध में अच्छे नतीजे, कमी हो गई है, उसमें पुलिस का भी रोल है। खुदारा जो पुलिस के जवान शहीद होते हैं उनको भी थोड़ा तक अगर उनका काम बुरा रहा है तो हमारी ही शायद कोताहियां हो, अब हमें मिलके से सही करना है। बट रेंजर्स के ऊपर सीएम सिंध ने कभी भी ऐसा कोई एतराज खड़ा नहीं किया जिससे ये परसेप्शन, ये तासुर पैदा किया जाए जानबूझकर कि रेंजर्स को वहां पर काम करने नहीं दिया जाएगा। चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट सुनाई, जब उन्होंने कहा कि इनके ऊपर हाथ पड़ रहा है इसलिए ये मसला आ रहा है, वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे, सुन लीजिएगा उनको। तो कल जब आप हुकूमत में थे, जब आपके मनपसंद हुक्मरान थे, तो तब तो यही फोर्स इसके तो अब नारे लगाते थे। आज चूंकि उन्होंने भत्ताखोरों के खिलाफ, टारगेट किलर्स के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करती अक्रॉस द बोर्ड, और उसमें कुछ आपके लोग फंसे हैं, तो ऐसी तकरीरें होती हैं कि इंसान तो हैरानगी होती है। और यह भी कहा निसार साहब ने, हक के मुतनाजा बनाया जा रहा है मखसूस मकासद की खातिर रेंजर्स को। आप भी साहब मेरा ख्याल है इशारा आपकी तरफ था कि अब आपके लोग पकड़े जा रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। देखिए काशिफ साहब, हमारे लोग तो मैं तो कह रहा हूं कि 2013 से लगातार कंटिन्यूसली पकड़े जा रहे हैं, और उनके साथ फिर उनको जबरदस्ती कन्फेशन स्टेटमेंट्स भी उनके आ जाते हैं, फिर उनको शो भी किया जाता है। अब ये कौन फैसला करेगा कि ये जबरदस्ती कन्फेशन स्टेटमेंट है? अब काशिफ, आपको जिस दिन रेंजर्स लेके जाएगी खुदा ना खासा, उस दिन जब आपसे 3 दिन के बाद बताएंगे ना कि जब आपको छोड़ेंगे, तो आप भी बहुत सारी बातें कर रहे हो कि आप हो सकता है कह रहे हो कि आप, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि जिस तरह के मतलब अगर वो आपका बंदा कन्फेशन स्टेटमेंट उठा के लेके जाया जाता है, लेकिन हो सकता है जबरदस्ती हो, मैं तो नहीं मान सकता, ये तो कोर्ट ही मानेगा। तो है कोर्ट में जाके प्रूफ हो जाए, वही स्टेटमेंट आप उसको मैच कर लीजिए कि जब वो स्टेटमेंट लिया जाता है और फिर जब कोर्ट में केस जाता है, तो वो कोर्ट में केस क्या जा रहा होता है, और फिर वो एक सिर्फ वेपन पे या फिर एक छोटे किसी भी छोटे मिसडिमेनर पे उसको बेल हो जाती है या वो रिलीज हो जाता है। तो आप फिर उसको भी मैच करिए कि जब उसको उठाया जाता है और कन्फेशनल स्टेटमेंट शो किया जाता है, तो वही क्या कोर्ट में जाता है या नहीं जाता, इसी पे एतराज है हमको। जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, आप मुतनाजा बना रहे हैं इसको। बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं आप हमको क्रिमिनलाइज, आइसोलेट, डिमोरलाइज करके, ये एक स्ट्रैटेजी है, उसके तहत
टारगेट किया हुआ है। मुत्तहदा के लोगों में से किसने रेजिस्टेंस शो की आज तक अरेस्ट होते हुए, मुझे बताइए। बाकी आप लियारी गैंग वॉर की कलदम तंजीमों की बात करते हैं, वो लोग मारते हैं पुलिस वालों को, वो लोग शहीद करते हैं रेंजर्स वालों को, वो लोग फायरिंग करते हैं। मुत्तहदा के कारकुनान को तो आप घरों से उठा के लेके जा रहे हैं, आप अपने घरों से बहुत से लोग पकड़े गए, वालिदैन उनके बच्चों के सामने मारते हुए लेके जा रहे हैं। सुन्नी तहरीक के सरबत इजाज कादरी साहब गए, उनको वहीं बिठा लिया गया। रोज खबर हमारा हैदराबाद का एक नौजवान वर्कर पुलिस कस्टडी में मारा गया है। लेकिन देखिए बात ये कि कहीं कहीं कड़वा घूंट पीना पड़ता है काशिफ। तो पड़ती है मैं हम लोग तो बड़े अरसे से ही कह रहे हैं, आप मेरे पुराने प्रोग्राम चला ले, आप सिर्फ साउंड वो लगा रहे हैं जो शायद मतलब प्रोग्राम से, यानी प्रोग्राम में आपको जरूरत थी, मैं नहीं कह रही आपकी जरूरत थी, प्रोग्राम की जरूरत थी, लेकिन पूरी बहस उस पर हुई है कि जो हमारे इतने कारकुनान पकड़े गए हैं, लेकिन हम इसलिए ये कड़वी गोली या कड़वा घूंट पी रहे हैं क्योंकि हमने मिलकर ये फैसला किया था कि कराची को साफ करना है दहशतगर्द लेकिन आपके पास भी खासे कागजात है, कुछ मेरे पास भी है, बड़े तज्जिए। तलत हुसैन साहब आजकल उनके भी है और दो चार और भी बहुत काबिल एहतराम लोगों के, कि पॉलिटिकल स्पेस क्यों श्रिंक की जाती है। मैं तो नहीं कह रही ना, ये मैं कह रही हूँ सिर्फ, तो मैं तज्जिया निगाहों की बात कर रही हूँ। जब तक ये ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त ये बड़ा वावेला मचाया जा रहा था कि जी इसके कप्तान जो है कायम अली शाह साहब हैं, उनकी कप्तानी में फैसला हो रहा है। वो कप्तान साहब भी बड़े खुश थे, वो करा रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है और कप्तान ये कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, इमरान इस्माइल साहब काका के ऊपर हाथ डाला गया। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, शाजिया मरी साहिबा कह रही है, सपोर्ट करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मरी साहिबा कह रही है कि कप्तान पूरी तरह सपोर्ट, कप्तान सीएम नहीं है, वो तो लड़ते बहुत है सीएम साहब के साथ। ओहो, ये कह रही है कि कप्तानी दे तो सही उनको, आपको ये तो आज पहली दफा सुन रहा है। तो ये क्रेडिट जो ले रहे थे कि कप्तान है, मैं कप्तान सीएम साहब नहीं है, कप्तान है कौन? अल्लाह ताला है, सबका कप्तान। आज तो बड़ी रात है, निकल आई है ना, निकल आई है सब बात। अच्छा सच आपसे बोलता है हमेशा। सीएम साहब ने लिखा था ना, एतराज रात का बिल्कुल जायज था। मैं सुन लूँ उसके बाद आपकी बात। इदारे का सीएम साहब का फैसला नहीं है, मैं जरा उनको सुन लूँ उसके बाद। जैसे मंजूर काका के ऊपर हाथ डाला गया, उसी वक्त पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि ये तो काया पलट गई है, ये जिधर जा रहे थे उधर हमारे साथ वोट में निकल आए हैं। वो असल में इनको आज अगर हम एक मिनट बोले ना, सारा प्रोग्राम तो आप नाम ही नहीं लिया किसी का, आज अगर हम सुना है कि और वो जो लखनऊ से 5 अरब एक एक करके अच्छा प्रोग्राम मैंने प्रोग्राम उस पर नहीं किया, प्रोग्राम आज अगर इनको हम ये इजाजत दे देंगे कि रेंजर्स से टारगेट किलर्स को पकड़ेंगे या टेररिस्ट को पकड़ेंगे, किसी की करप्शन को हाथ नहीं लगाएंगे, तो ये सब खुश है, सब खुश रहेंगे। सर क्विकली ब्रेक में जाने से पहले मैं जरा मैडम ये नहीं बोले, एक दफा बोले मेरे को कप्तान कौन है, क्योंकि जितनी करप्शन इन्होंने साजिया मरी साहब, मैं आ रहा हूँ करप्शन के ऊपर मैं आता हूँ। कप्तान इनके यहाँ ज्वाइंट है और जिन कप्तान इन्होंने अभी कहा कि कप्तान के सीएम साहब नहीं है, ये बात आज वो कहते हैं हद्दी से लेकर के 6 और कप्तान है, मुख्तलिफ लोग कप्तान है, सिंध को की और लोग चला रहे। जब मोहम्मद अली शेख थे, मंजूर काका पे, निसार मुराद, ये सबको पता है कि क्यों कायम अली शाह, ये लोग सब अच्छे लोग हैं। बात पॉइंट ये है कि सीएम साहब को वो पावर ही नहीं डेलीकेट किया गया कि वो अपने असर्ट करें और वो गो हेड दे। मैं ये बात समझता हूँ कि सीएम साहब ने कहा था कि इन एडिशन टू सपोर्ट टू पुलिस रेंजर्स को बुलाया जाए। जब कप्तान के लोगों को पकड़ा गया और नोटों का और करप्शन का गेम हुआ, तो फिर जो असली कप्तान सारे थे उन्होंने सीएम साहब को कहा कि आप पुलिस को ना दो। ओवरसाइट कमेटी के नहीं, ये तो ये बताएंगे कप्तान कौन है, ये उस पार्टी की एमएलए है, ये समझती है, ये बताएंगे कप्तान भी नहीं पता। अल्लाह की तरफ इशारा कर दिया जनाब। नहीं, मैंने कहा, आपने कहा कि सब आज तो बड़ी रात है ना, तो मैं तो अल्लाह को याद करूंगी जी, मुझे तो करना है अल्लाह को याद करना। बड़ी रात है, ब्रेक लेते हैं। आज कराची के शहरी सोच रहे होंगे और लाइट होनी चाहिए, लोगों को पता है का वास्ता है। लाइट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लाइट तो के इलेक्ट्रिक प्राइवेट ब्रेक लेने दे, एक ब्रेक लेने, एक भी बहस होनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मसाइल बहुत से हैं, कोई कहता है करप्शन की वजह से शोर हो रहा है रेंजर्स के खिलाफ, कोई कहता है कि हाथ पड़ रहा है बड़े बड़े लोगों के, अपने लोगों को, सियासी जमातों के लोगों को, इसलिए ये इतना शोर है कि रेंजर्स बहुत खराब है, रेंजर्स ने सारा मसला खराब कर दिया। आप कह रहे हैं
मैंने नहीं कहा, ये एमकेएम वाले कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा हो गया है, वो मैं कह रही हूँ। एमकेएम ने कहा मकबूजा हो गया, मैं नहीं कह रहा, जो कह रहे हैं मकबूजा हो गया, शुरू से कहा था हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं। हमने कहा था कि किसी इदारे पे इस तरह आप कह रहे कार्रवाई हमारे साथ भी हो रही है, बाबा बर्दाश्त करें जी एमकेएम वाले, ये एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आदि साहब, इसका इस बहस में कम से कम और जो एक सेंस आ रही है वो ये कि जो तक जिसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, जिसके बंदे पकड़े जा रहे हैं, वो इसकी मुखालफत करेगा, यानी मुत्तहिदा एंड पीपल्स पार्टी को तो आप सुन लीजिएगा। आप भी साहब काशिफ भाई, मुखालफत जो है इसके बाद तर्ज़ अमल पर है और मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है और हमने बड़े वाज़े तौर पे काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि जिस तरीके से रेड्स और अरेस्ट किए जा रहे हैं और फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के साथ उनको पेश किया जा रहा है, कोर्ट में कोई चीज़ जाती नहीं है, मीडिया पे पहले आ जाती है, आप लोगों को सबको डिस्ट्रीब्यूट की जा जाती है ताकि फिर आप लोग मीडिया पे बैठ के इसको डिसाइड करें, तो इसके तर्ज अमल पे सिर्फ ऑब्जेक्शन है। इसको नो डाउट कि रेंजर्स की कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसमें कराची में बहुत सारी जगहों पे रेड्स भी हुई हैं जहाँ पे इनको रेजिस्टेंस भी अली रज़ा आदि की आवाज़ है। इमरान इस्माइल साहब, व्हाट विल यू डू अगर उनका इख्तियार निकालते हैं तो खत्म करते हैं रेंजर्स को? देखिए, सब बात है जो मैं आपसे अभी कह रहा था ना कि अगर हम इसमें से चीफ मिनिस्टर को ये कह दें कि जी ये करप्शन पे हाथ नहीं डालेंगे, सारे इख्तियार देने के लिए तैयार हैं, वही अभी आपकी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है मशरूत तौर पर हम तैयार हैं, ये करप्शन पे हाथ न डालें, बाकी हम इनको इख्तियार देने के लिए तैयार हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने इनके कहा है, ये अभी चल रहा है आपकी टीवी पर नीचे टिकर चल रहा है। ये करप्शन पे हाथ डालने का मैंडेट इसे वापस लिया जाए। बिल्कुल, वो कहते हैं करप्शन पे हाथ ना डालें, बाकी आप जो मर्जी करें, यानी आप इदारों में करप्शन ना निकालें, आप वजीरों को ऊपर हाथ ना डालें करप्शन के ऊपर, बाकी आप टेररिज्म के लिए और आप डाके रोकने के लिए जो करना चाहते हैं यानी वो आप करते रहे। करप्शन को रोके, हमें ना पकड़ना तो मसला ये उनके खिलाफ करते रहे, हमारे ऊपर हाथ नहीं डालना। तरह से देख लें, एमकेएम का जरा से देख लें तो 10,332 बंदे अब तक अरेस्ट हुए, जिसमें जो एमकेएम का कहना है कि 200 बंदे हमारे जो है वो पकड़े हुए इन्होंने, तो कोई रेशो बनता है जो एमकेएम चीखते कि हमें दीवार से लगाया जाए, बाकी 10,000 बंदे किसके? मैं जानती कि आपके चैनल पे क्या टिकर चल रहा है, लेकिन एक और 92 न्यूज और एक दो और चैनल्स के ऊपर टिकर ये चल रहा है कि तौसी हो रही है, अनकंडीशनल हो रही है, तो मैं नहीं सुना। आप देखिए ना, यही बात है कि हमारे यहाँ तस्दीक का अमल थोड़ा वीक है। अब क्या हुआ है क्या नहीं, उससे पहले अगर इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज आएगी तो फिर बाद में ये प्रोग्राम इन्हीं बुनियादों पर हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग एकेडमिक गुफ्तगू नहीं कर पाते। अब बात सुनिए, शाजिया मरी सेइंग बहुत अच्छा ऑपरेशन है, हिमायत कर